Lymphatic system. Get it? Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. Okay, so by revising this chapter, first I should go for a revision for you people. Okay, so okay, who will tell me the blood constituents? Deepak, Preetam, Yes, ma'am. yeah, tell me the blood constituents. Ma'am, blood contains Hmm. RBC, Hmm. WBC, platelets. Hmm. Ma'am, these three connectivities. दोबारा बोलो, RBC. ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट आरबीसीज, WBC, WBC platelets, and platelets. बस. और मैम प्लाज्मा भी होता है. Good. This one non-living blood. मैम प्लाज्मा में 90% एटलीस्ट वो वाटर होता है और उस मिनरल्स भी होते हैं. Minerals. Fibrinogens, major protein, right? Yes, ma'am. Right, Deepak? And then your electrolytes Cl negative, K positive, HCO3. Okay? Yes, ma'am. Okay, Shanu? Yes, ma'am. Okay. Shanu, will tell me what is the function of RBCs? Function of RBCs? Ma'am, RBC contain Ma'am, pigments. oxygen. एक मिनट प्रीतम. I have asked this question to Shanu first. I'll ask you Deepak, RBC. Preetam also. RBC called thyrocytes. Normal कौन सा level sites? count जो 4 point thyrocytes. थायरोसाइट्स नहीं होता बेटा, Thyro. अरिथ्रोसाइट्स. क्या Normal बोलोगे? count जो अरिथ्रोसाइट्स. thyrocytes. 4.5 4.5 to 5.5 million mm3. और लेक ऑफ न्यूक्लियस होते हैं ये. इन्यूक्लिएटेड. अगर आरबीसी डाउन मतलब डिक्रीज होगा तो कॉल्ड उसको हम बोलेंगे कंडीशन को एनीमिया. 3 टाइप्स होते हैं एनीमिया. विटामिन B12, hemolytic anemia, iron deficiency, iron deficiency anemia. Okay, good. Deepak, tell me the difference between open circulatory system and closed circulatory system. मैम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में. और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब हार्ट से सीधा फ्लो करता है, किसी कैविटी में मतलब फ्लो करता है ब्लड, और उसमें ही ऑर्गन होते हैं. और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मैम जो कैपिलरी ब्लड वेसल वगैरह प्रेजेंट होती है, जो मैम इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मैम क्लोज्ड में सेम लेवल पे होता है, उसमें मैम डिफरेंट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बेसिकली लेस एफिशिएंट होता है, मोर प्रेशर, लेस प्रेशर. लेस एफिशिएंट, लेस प्रेशर. मोर एफिशिएंट, मोर प्रेशर.
Then non-systemic होता है ये. This is systematic, right? Arthropoda, mollusca, और इसमें chordates. Mammals. Okay. Now tell me, ये सब तो हमने कर चुके थे. कार्डियक साइकिल, ठीक है. बेसिकली ये आप कैसे करोगे? पहले आप सोचो all four chamber are being in a state of diastole. Hi Arshita, how are you? All well? ठीक है, that is a joint diastole की. Hi Arshita, all well? ठीक है. Basically, all four chambers are being in a state of diastole. After this, the tricuspid and bicuspid walls are open, okay, and the left atria and left and right ventricles are filled with blood coming from vena cava, coming from pulmonary vein and vena cava respectively. इतना तक समझ आया तुम सबको कि मैं क्या बता रहा है? मम्मी लास्ट में क्या लिखा है? बच्चे मैंने लिखा है कहाँ पे? Vein के Respectively. बाद. And vena cava respectively. And vena cava respectively. Okay. So यहाँ तक समझ आया तुम सबको? दीपा, पहला क्या है? All the four chambers in a diastole stage. Okay, what is a diastole stage? मतलब diastole का मतलब होता है relax stage पर है, ठीक है? फिर जब tricuspid और bicuspid wall open होंगे तो blood flow करेगा pulmonary vein से और vena cava से into the right and left ventricle through left and right arteria. समझ आया? ये मैंने ये चीज मेंशन कर दी. इतना तक समझ आया? Yes ma'am. yes इन सब चीजों में जो सेमिनोनाल वॉल है, सेमिनोनाल वॉल, ये क्लोज्ड है at this stage. Getting it? समझ आया यहाँ तक? क्या बोला मैंने? ये फ्लो चार्ट बना लो और ऐसे ही बनाना. That is 4 chambers are in relax, that is diastole stage. Okay? हाँ ना भी बोलते रहो प्लीज बीच में. मैम Yes, ma'am. चारों यस मैम. रिलैक्स्ड है मतलब जॉइंट सिस्टोल डायस्टोल बोलेंगे या खाली डायस्टोल बोलेंगे? जॉइंट डायस्टोल भी बोल सकता है.
ठीक है, joint diastole stage. Then tricuspid, bicuspid walls open होंगे, ठीक है, blood flow through pulmonary, मैं pulmonary ऐसे लिख रहा हूँ PV और वेना केवा, ठीक है, blood flow through PV pulmonary vein plus vena cava into left and right ventricle through left and right artery. Get it? यहाँ तक समझ आया? The seminal walls are closed. The seminal wall are closed. Get it? Now, इसमें क्या हो रहा है, जब seminal walls और जब blood भर चुका है, so the first जो SAN node की full form क्या है? दीपक? Sinoatrial node. Sinoatrial node. That will generate an action potential जो क्यूलेट करेगा बोथ आर्टरी और वेंट्रिकल को, राइट? समझ आया? Yes, ma'am. जो कि स्टिमुलेट करेगा आर्टरिया को फॉर सिस्टोल. ओके, समझ आया? सिस्टोल का मतलब क्या है यहाँ पे? कंट्रैक्शन. Am I clear? Yes, ma'am. समझ आया कि मैंने क्या बोला? जो SAM node है, that is sinoatrial node, that will generate an action potential for arteria for the systole. Systole means contraction. अब जैसे ही arterial systole होगा, there will be increase in blood. ठीक है, the flow in the ventricles is about 30%. मतलब कि वेंट्रिकल्स का जो ब्लड फ्लो होगा वो 30% बढ़ जाएगा, राइट? देन देयर इज अनदर एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड इनटू वेंट्रिकल्स, दैट इज बाय AVN नोड्स एंड AV बंडल्स के थ्रू, ठीक है? देन बंडल ऑफ हिस्बे, देन द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद देयर इज एन आर्टेरियल डायस्टोल. ऑब्वियसली जब आर्टरी या डायस्टोल की पोजीशन में होगा, ओके, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स दैट विल फोर्स टू ओपन द सेमिनल वॉल्स. किसको ओपन करेगा? सेमिनल वॉल्स में. इसमें जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स है वो बंद हो जाएंगी, सो दैट अ बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरी वुड बी हैपन. ओके, फिर जो सेमिनल वॉल्स है व्हिच इज गार्डिंग द pulmonary artery and aorta from the left side are forced to open, and then there is ventricular diastole. Then again it will be the joint diastole. Getting my point? समझ आया? दीपक? दीपक, हर्षिता, शानू, get it or once more I should मैं बताऊं एक बार पिक्टोरियल मैम एक बार रिपीट कर दो. मैम एक बार रिपीट कर दो. मैम जो वीडियो दिखाएंगे बोल रहे थे. यार वो वीडियो ना इसमें भी चल नहीं रहा है, मैं तुम लोग को व्हाट्सएप करूंगी वीडियो. ओके मैम. ठीक है, आई विल मेक अ लिंक ऑफ दैट वीडियो बिकॉज़ वो अभी इसमें चल नहीं रहा है. तुमको मैंने एक वीडियो तो दिखाई थी ना, फ्लो ऑफ ब्लड की, डबल सर्कुलेशन की. Yes, ma'am. यस मैम. सी
इधर क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, राइट। देयर विल बी deoxygenated blood coming from upper body, that is pulmonary valve है ये, right atrium है ये, this is right ventricle, this is left atrium and this is left ventricle। इतना समझ आया तुमको? अब डायस्टोल में क्या है, कौन कौन सी वॉल्स बंद है, सेमिनोनाल जो वॉल्स है वो बंद है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स खुल जाती है। कौन सी वॉल्व खुलती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाती है, और वेंट्रिकल्स में क्या शुरू होने लगता है, ब्लड फ्लो होने शुरू होता है। समझ आया ये चीज? हाँ Yes, ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है। फिर इसके बाद आर्टीरियल सिस्टोल में क्या हो रहा है, देयर विल बी पल्मोनरी वॉल्व जो है वो बंद होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। आर्टीरियल कंट्रैक्शन मतलब जो अब आपकी आर्टरी है वो क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर में जो ब्लड है वो 30% एक्स्ट्रा है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अब किसमें, वेंट्रिकल्स में। नाउ इफ द वेंट्रिकल्स में ज्यादा अगर प्रेशर होगा, अब क्या होगा, जब वेंट्रिकल पूरा ब्लड से भर गया है तो जो आपकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स है वो बंद हो जाएंगी, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो आर्टरिया में ना करे, ठीक है। नाउ ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स देयर विल बी चांसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ, देयर आर चांसेस क्या, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ सेमिनोनाल वॉल्व्स व्हिच इज गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द aorta. Pulmonary artery on the right side and aorta from the left side that are forced to open. Are you getting it? And then again there is a diastole. Getting it? समझ आया? Yes, समझ ma'am. आया? यस मैम। तो प्लीज पूछ लो क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए मैंने अलग से भी लिया है। पूछो क्या समझ नहीं आया, यस मैम करके मेरे को मत वो करो कि नहीं मुझे समझ आ गया। Ask me what you are not understanding it. मैम सेमिलुनर वाल्व का वर्किंग समझ में नहीं आ रहा था। बेटा सेमिनोनाल जो वॉल्व होती है ना वो गार्ड कर रही है, तो इसमें सेमिनोनाल वॉल्व इसमें सेमिनोनाल वॉल्व्स नहीं गई। सेमिनोनाल जो वॉल्व्स है वो बेसिकली क्या कर रही है, वो गार्ड कर रही है किसको, पल्मोनरी आर्टरी को और अयोटा को। पल्मोनरी आर्टरी ऑन द राइट साइड एंड अयोटा को। उसके बाद जैसे ही वो वॉल्व्स खुलेंगी देन देयर विल बी अगेन पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो जाएगा, अयोटा में ब्लड फ्लो हो जाएगा। कोई डाउट है? दीपक समझ आया? हर्षिता यू गेट इट? Yes, ma'am. You get it? Yes, ma'am. तो कोई प्रॉब्लम? किसने बोला है रिपीट? रिपीट किसने बोला है? निकिता। निकिता यू गेट इट नाउ? मैंने रिपीट कर दिया है वैसे। निकिता ठीक है, मतलब कि तुम मोटा मोटा दीपक क्या नहीं समझ आया? शानू आपको भी समझ नहीं आया, बताओ क्या नहीं समझ आया बच्चे? मैम अभी तो आ गया है, फिर पढ़ने के बाद दोबारा अगर डाउट लगेगा मुझे मैं आपसे पूछ लूंगी। बच्चे इसलिए मैंने कहा था पढ़कर आने के लिए, बिकॉज तुमको खुद से पढ़कर आते तो देयर इज, तुम्हें अभी डाउट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जो बताया तुमको वो तुमने समझ लिया। यस मैम। गलत है ये, तुमको पढ़कर आना चाहिए था ये। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर हाँ मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी एक खुद से बना के, ठीक है। वो उसमें चल नहीं रही थी, ठीक है। आई ट्राइड इट टुडे एज वेल, नहीं चल रही थी बट आई शेयर इट विद यू पीपल, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास मोस्ट बैक। then maybe you can understand more clearly. अभी समझ आया कौन कौन से हो रहे हैं? That is पहले joint diastole है, then arterial systole है, then ventricular systole है। समझ आया? Blood is pumped like, suppose this is arteria, this is ventricle। समझ आया?
Okay. See, this will be your this will be your ventricle and this will be your arteria. Okay. So when arteria contracts, obviously my ventricle got relaxed. When my ventricle got contract, then obviously seminal walls get open and the blood will goes into the pulmonary artery and aorta respectively. So the rhythmic contraction is like arterial contract, ventricular relax, ventricular contract, arterial got relaxed. Are you अब समझ आया कैसी rhythmic चल रही है? Yes, ma'am. हाँ दीपक? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब समझ आया शानू? क्लियर हुआ थोड़ा? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Now ECG. Okay. Now ECG. That is P wave, QRS complex and the T wave. See, साथ में मैंने आपको दिखाया है ECG की normal beat क्या है. ठीक है? Hello, ma'am. Now this is who is it? तौसिफ. Hello, ma'am. हाँ जी तौसिफ बताओ. Ma'am, what is the root of this action potential wire from it generates inside heart? ऐसे है नोड्स बेटा. अच्छा नोडल सिस्टम मैंने लास्ट क्लास में आप थे नहीं, मैंने बता दिया था, एक बार फिर बता देती हूँ. See, yeah, this is our nodal system. Okay. Now, SA nodes, there are, okay. What are these nodal system, Tosif? That is 99% of your heart is made up of cardiac muscle. Yes, ma'am. Okay. 1%. हर्षिता मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. Hello. Ma'am, you are writing, ma'am. Yes, I am cannot see, writing. ma'am. One I cannot see, second. ma'am. One second. Now you can see. No, ma'am. Now you can see. Yes, ma'am. Now you can see. Harshita? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, 99% of your cardiac muscle, your heart is formed. 1% is made up of modified cardiac muscle. That is these nodes. SA nodes, that is sino-arterial nodes, generates the action potential approx 60 to 80 beats per 60 to 80 times per beat. 1 second. Okay, this is also known as the pacemaker of heart. Okay, pacemaker of heart. Getting it, Tosaf? Okay, now Yeah, there ma'am. are SA node, there is AV nodes, that is arterioventricular nodes, Ma'am, which is ma'am, is this SA node located in right auricle?
Yeah, this not auricle, that is right atrium. Okay, auricle पहले बोलते थे, अब हम atrium बोलते हैं. ठीक है, yes, Okay, this is located. Yeah, this is located in the right atrium, in just the back of your pulmonary artery flows off. उसके just पीछे, just behind there is SA node. Okay, basically ये pacemaker इसलिए होता है because most of the action potential और इसकी जो generate करने की जो capacity है वो ज़्यादा है और time taking बहुत कम है. ठीक है. Now this SA node is being connected with an एक्चुअली मैम जो आप कार्डियक साइकिल अभी पढ़ा रही थी, इट इज एन इलेक्ट्रिकल दिस सिग्नल दैट इज जनरेटेड, क्योंकि जब ऑरिकल्स को कंट्रैक्ट होना पड़ता है, इज इट द SA नोड दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से तो ऑरिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं. तो ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसे नोड्स. अब आपने लेट ज्वाइन करा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना. क्लास आई हैव डिस्कस्ड इट. नो, सी आई हैव रिटन इट आल्सो. अब आप मेरी क्लास में लेट ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती. तो सॉरी बच्चे, ठीक है. आपको पहले क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी. ठीक है, ओके. कोई डाउट है तो आसिफ तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो. ठीक है, मैंने जब कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर दी है तब आप आ रहे हो. कोई डाउट है तो बता दो, मैं दोबारा भी बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट. ठीक है, नोडल सिस्टम समझ आया. नाउ अगर तुम नोड्स पूछ ही रहे थे तो आसिफ, बेसिकली देखो बच्चे, AV that is SA nodes, sinoarterial nodes. ठीक है, then there are AV nodes, that is arterioventricular nodes, which is basically generate almost 50 to 60 beats per beat. ठीक है, then there are bundle of fish that is supply almost about 30 to 40. No, there is also a important topic. अगर for example SA nodes are being connected with AV node. Okay, that is why AV node को हम बोलते हैं reserve pacemaker. क्या बोलते हैं? Reserve pacemaker. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था. What is the root of this action potential? Ma'am, what is the root जो आपकी of action potential? Ma'am, root of action potential क्या है? वेगस नर्व भी सप्लाई करती है एंड देन ऐसे नोड्स जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, ओके. ओके, टेल मी वन थिंग. ओके, टेल मी वन थिंग. हाँ मैम 70 to 75 पर मिनट दिया हुआ है NCERT में. 72 बेटा अलग अलग मैं नोड का बता रही हूँ आपको ये चीज. मैम AV नोड या SA नोड ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? ऐसे नोड बच्चे, ऐसे नोड सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल सीक्रेट करता है. यस दीपक, क्या बोल रहे थे आप? मैम आप पर बीट बता रहे हो ना, तो उसमें पर मिनट लिखा हुआ है 70. बेटा वो हार्ट बीट है, वो हार्ट बीट है, हार्ट रेट बता रहा है वो 70 to 72 पर बीट. ओके मैम, ओके मैम. हाँ, वो मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, दैट इज कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. When there is 70 ml of blood flow, each ventricle into 70 beats per minute. That is known as approx 5,000 ml. That means 5 liter of blood is being pumped daily by the heart. Right? 1040 ml. Yes, ma'am. So approximately, ठीक है. तो that is the meaning कि that was a cardiac output. 5 liters. Okay. Yes, ma'am. That is cardiac output. तो वो में cardiac output जब ये तो that is different. This is ये तुम्हारा action potential बना रहा है. ठीक है, ये आपको दे रहा है. ऐसे नोड सबसे ज्यादा देता है. अच्छा, tell me one thing. If for example देखो ये तो nodal system है and there is a nerve also which supply, that is a vagus nerve. कौन सी nerve होती है? Vagus nerve. Now tell me, if there is any accident and vagus nerve injured हो गई है, vagus nerve वो supply नहीं कर रही है, do the
heart rate will be decrease or increase? Yes, Tosif, you tell me. Amity was my first choice. I was satisfied. Tosif, Yes, ma'am. you tell me, if the vagus nerve got injured anyway, do the heart rate is increase or decrease? Wait. बताओ तौसिफ. Ma'am, I'm not getting your question, ma'am. See, एक तो होता है नोडल सिस्टम. अगर आप नोडल टिश्यू जो एक्शन पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है. मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैंने एक बुक से एक क्वेश्चन देखा था. व्हाट इज द रूट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट? वहां पे आया था कुछ ऐसे नोड से लेके एवी नोड. तो रूट तो बेटा ऐसे नोड ही होगा ना, क्योंकि रूट जो है जो सबसे ज्यादा. जो मैम एवी नोड होते हैं वो किस में होते हैं? वेंट्रिकल्स में. हाँ, दैट इज आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड्स. वो वेंट्रिकल्स को सप्लाई करते हैं. दैट इज अ रिजर्व पेसमेकर. 50 to 60 पर बीट देते हैं. ठीक है. ओके. नाउ माय क्वेश्चन इज, नोडल एक्शन पोटेंशियल सिस्टम है हमारा, जिसमें एक्शन पोटेंशियल सप्लाई होता है बाय एवी नोड्स, एसए नोड, बंडल ऑफ हिस एंड Purkinje fibers. ठीक है. And there is no. It starts from SA node. Yeah, there are four types of nodes. ठीक है. मैं मेरा मतलब है रूट, मेरा मतलब है एक्शन पोटेंशियल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम SA नोड टू AV नोड क्या होता है तो Purkinje fibers. फॉर एग्जांपल दिस इज योर हार्ट. ठीक है, ये आपका हार्ट है. मेजर जो एक्शन पोटेंशियल सप्लाई करता है वो ऐसे नोड ही करता है. मैंने आपको बताया ना, ऐसे नोड मोर एफिशिएंट है. ठीक है, रैपिड सिग्नल भेजता है, तो ये करने नहीं देता. सबसे ज्यादा जो हिस्सा ले लेता है वो यही ले लेता है ऐसे नोड. ठीक है, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस कि एवी नोड नहीं करता एक्शन पोटेंशियल, या बंडल ऑफ हिस नहीं करता, या Purkinje फाइबर नहीं बनाते. एक्शन पोटेंशियल हर एक नोडल सिस्टम परफॉर्म करता है, देता ही देता है. ठीक है, Purkinje फाइबर्स भी 10 to 20 देते हैं. ठीक है, समझ आया. नाउ माय क्वेश्चन इज तौसिफ, ये तो नोडल सिस्टम है जिसमें 4 नोड्स है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, एंड उसके अलावा देयर इज वेगस नर्व आल्सो व्हिच इज सप्लाइड टू हार्ट. नाउ टेल मी, इफ आई कट दिस वेगस नर्व, अगर मैं इस वेगस नर्व को कट कर दूंगी, ठीक है, व्हाट विल बी द रिएक्शन टू द हार्ट? Yes. द हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज? Decrease. Increase. Yeah, right, Nikita, you are right. Heart rate will increase. Yes, sir. Okay. Heart rate जो होगा वो increase कर जाएगा, because action potential जो होगा वो ज्यादा हमारा basically, अगर एक वेगस नर्व है वो इंजर्ड हो गई है, that means वो सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो नोड्स पे काम बढ़ जाएगा. अगर नोड्स पे काम बढ़ जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल ज्यादा बनेगा. ठीक है, उसके कारण क्या होगा बेसिकली, और अगर वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा, अगर कोई इंजरी हुई है तो ब्लड लॉस होगा, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. तो इसके हिसाब से जो आपकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा. गुड निकिता. ओके, नाउ टेल मी ECG. ओके, who will tell me the ECG first? P wave क्या होती है? P wave represent the clinical excitation, that means depolarization of the arteria. मतलब कि which leads to contraction of both the arteria. ये जो आपकी P wave है,
एग्जैक्टली ठीक है, वो क्या कर रही है, वो डीपोलराइजेशन कर रही है। नो 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 निकिता निकी यू आर रॉन्ग बच्चे, कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरी होगा। डीपोलराइजेशन मतलब कंट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी ऑफ बोथ, या आर्टेरियल सिस्टोल। जो पी वेव होती है वो आर्टेरियल सिस्टोल कर रही है, ठीक है। नाउ इधर ही साथ में मैंने आपके लिए 4 ईसीजी रखे हैं, दैट इज नॉर्मल ईसीजी, ठीक है, जिसमें आपको पी वेव दिख रही है, क्यूआरएस दिख रहा है, देन टी वेव दिख रही है, फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, फिर पी वेव दिख रही है, फिर क्यूआरएस दिख रहा है, फिर टी दिख रही है, दैट इज अ नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। फास्ट हार्ट बीट में क्या हो रहा है, देयर विल बी पी वेव, क्यूआरएस एंड देन जो रिपोलराइजेशन है वो सब में बढ़ा हुआ है। रिपोलराइजेशन जो मतलब टी है वो सब में बढ़ा हुआ है, मतलब जब फास्ट हार्ट बीट होती है तो हमारा रिपोलराइजेशन बढ़ जाता है, गेटिंग इट। एंड जो आपके स्लो हार्ट बीट है उसमें पी वेव क्यूआरएस बढ़ रहा है, देन टी वेव, उसके बाद देयर इज अ लैग, ठीक है, मतलब देयर इज अ एक ठहराव आ रहा है, दैट इज अ स्टैग्नेंट, this will be accumulating, that there will be a low heartbeat. इरेगुलर हार्ट बीट को आप अरिथमा भी कहते हैं, अरिथमिया। क्या बोलते हैं हम इसको, अरिथमिया। आर्टीरियल अरिथमिया, आर्टीरियल अरिथमिया भी बोलते हैं, गेट इट। नाउ टी वेव जो आपको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, दैट मींस दे इनिशिएट द वेंट्रिकल सिस्टोल। ओके, पी वेव क्या कर रहा था, आर्टीरियल, 1 सेकेंड, let me write it more, arterial contraction systole, okay, and there is a ventricle systole, ठीक है। and your T wave क्या कर रहा है, that represent the repolarization, okay, the end of the T wave mark as the end, that means normal repolarization, that means end of the systole, okay, get it, समझ आया। अब जो मैं बात कर रही थी तुम लोगों से एंजाइना पेक्टोरिस की या मायोकार्डियल इंफेक्शन की, एंजाइना पेक्टोरिस में ये जो एसटी एलिवेशन है ना, मतलब कि 1 सेकेंड, इसमें भी दिख रहा होगा फास्ट हार्ट बीट में, लेट मी, basically your P, then QRS and then ST elevation। जो ये ST elevation है ना बच्चे, वो एंजाइना पेक्टोरिस में नहीं दिखता, no estivation is seen in angina pectoris, okay, whereas myocardial infarction में ST elevation दिखता है, ठीक है। मैम एलिवेशन नहीं दिखते मैम, तो क्या स्ट्रेट हो जाते वाला, जीएनओ मैम मतलब मैम नो मैम, ये जो एलिवेशन नहीं दिख, एक मिनट, तो सिर्फ क्या लिख रहे हैं, जेएलओ मैम, व्हाट इज जेएलओ, किसी को समझ आया है कि क्या लिखा है, चलो, नो मैम, पता नहीं,
निकी हेलो, कैसे 7:06 पे मतलब 1 घंटे पहले क्लास स्टार्ट हो गई थी, अब हेलो? नो 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 नो, इट मस्ट बी समथिंग एल्स, आई डोंट नो। ठीक है, यस। हाँ प्रीतम, आप क्या पूछ रहे थे? मैम वो जो एलिवेशन नहीं होते हाँ मैम उसके बदले में मैम के स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं मैम, फिर क्या होता है? एसटी एलिवेशन नहीं दिखता है, इसका मतलब कि नहीं पता चल पाता है कि मतलब कोई हार्ट की जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है वो किधर जा रही है। स्ट्रेट नहीं आता है, देयर विल बी स्लाइड बट नॉट एलिवेटेड, बट मायोकार्डियल इंफेक्शन में दिखता है। वैसे मैं दिखा सकती हूँ तुमको, 1 सेकेंड। मैम आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं? No, no, no. 1 second. I'm showing you one picture actually. 1 second. हेलो मैम। हाँ, आप क्या लिख रहे थे? हेलो मैम। हाँ जी, बताओ। मैम बीच में कुछ नहीं आता है, नेटवर्क इशू है कुछ मैम। मेरी साइड से तो नहीं है बच्चे। ठीक है, ओके। कैन यू ऑल सी दिस डायग्राम? मैम थोड़ा Yes, जूम इन ma'am. करना। Zoom. 1 second. नो मैम, कोई डायग्राम नहीं है। हेलो। हाँ जी। Now you can see it? नो मैम, कोई डायग्राम नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं दिख रहा ये डायग्राम? मैम दिख रहा है। Yes, ma'am. दिख रहा है। Yes, ma'am. तो सिर्फ आपकी साइड से कोई इशू है बच्चे, आई डोंट नो। ओके, कैन यू सी नाउ? Yes ma'am. Can you appreciate this ST elevation? Yes, ma'am. But Yes, I ma'am. can't move my pen, so that is why you can see my cursor, no? Yes This ma'am. is Cursor is visible. my, yeah, this is ST elevation I'm talking about in a myocardial infarction. Clear बच्चे? Downward. No, 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 upward की side पे जो है, this ST elevations, this ST elevations, this ST elevations. इसको देख के पता चलता है that the patient is having what? Myocardial infarction. Clear? Okay. Yes, ma'am. Clear? Yes. समझ आया अच्छे से? Yes, ma'am. मैम एक डाउट था, ECG ग्राफ में स्ट्रेट अगर कर्व जाए, मतलब स्ट्रेट जाए लाइन, इन केस हार्ट जो
काम करना बंद कर देगा? एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, मैं बस एक सेकंड एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद बताओ। ये दिख रहा है आपको? ओके अब आपको ये दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ जी, अब बताओ मुझे आप क्या कह रहे थे। शानू मैम ईसीजी में अगर कोई ग्राफ ना हो, स्ट्रेट लाइन जा रही हो, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा उस केस? उसमें तो इंसान भी काम करना बंद कर देता है शानू, सीधा ऊपर। ओके मैम। यस, दैट मींस हार्ट स्टॉप बीटिंग। ओके, देयर will be no action potential. Okay, and the line goes like this. Line goes like this. ठीक है, दैट मीन्स आपको मैं लिख रही हूँ तो आपको दिख नहीं रहा है प्रोसेस? जी मैम। मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो आपको दिख नहीं रही है वो? मैम इससे पहले जो आप कुछ लिख रही थी वो तो नजर आता था, लेकिन अभी आपने कोई डायग्राम की बात की ना मैम, तो डायग्राम नहीं आई इसमें। मतलब ये अभी मैं ये लिख रही हूँ तो ये आ रहा था? नहीं नहीं। एक सेकंड आप होल्ड करो, जस्ट अ सेकंड। अगर मैं क्लास चलावी तो sir, there is a problem from your side, so kindly check your network. मैम यहाँ पे 2G नेटवर्क चल रहा है ना मैम। हाँ, तो that is a issue with you, मतलब with you, but yeah, I have. So kindly आप कुछ करो। मुझे आपकी बात भी कट कट के आती है। Where are you from, Tosser? JNK. Okay, that is the reason maybe. Okay. You can see my recorded lecture if you can't see my screen, okay? Next we'll be discussing with your lymphatic system, that is the parallel system going on. कोई question है मैम? मैम इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मैम? कार्डियक सिस्टम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मैम जो आए हैं पिछले सालों से? हाँ है, मैंने पढ़ाई भी है. You can see on my screens as well. These are the questions which have come. Starting से there is, that is the normal blood count करता था AIPMT 2011. ठीक है, open circulatory CNN. Then the question is asked about adult human RBCs are enucleated. Which of the following statement is most appropriate explanation for this feature? For this feature, NEET 2017 में क्वेश्चन था ये, ठीक है. एंड दिस इज ऑल. मैं अपनी PPTs में सारे क्वेश्चन इंटीग्रेटेड रख देती हूँ जो भी उस टॉपिक से पढ़ाती हूँ, ठीक है. इस पे बेसिकली कार्डियक से ECG पे क्वेश्चन आ जाता है. ECG का डायग्राम बना देंगे और तुमको बता देंगे which represent what. ठीक है का सर? ओके. यस मैम. उसमें वो P वेव या QR या T वेव के बारे में पूछ रहे हैं. हाँ कि जैसे P वेव जो है वो डिपोलराइजेशन कर रहा है, तो बेसिकली वो कंट्रैक्शन कर रहा है, आर्टीरियल कंट्रैक्शन दिखा रहा है, तो तुमसे पूछ लेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ P वेव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर PQRS complex, QRS complex, what is the significance of T wave. So yeah, ये पूछ लेते हैं.
मैम उस मैम वो जो है ना वो मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक मायो हार्ट कुछ मायोजेनिक ही पढ़ाया मैंने आपको। जो ये मायोजेनिक हार्ट है उसमें जो मायोजेनिक में मैंने मसल्स पढ़ाई, हिस्टोलॉजी पढ़ाई, डिजीजेस पढ़ाया। न्यूरोजेनिक हार्ट में नोडल सिस्टम आ गया। ठीक है बेटा, आप मेरी क्लास रेगुलर लिया करो तो आपको सब भी आएगा। ऐसे बीच बीच में अगर आप क्लास बंक करेंगे तो हाउ कैन बी कोप अप, राइट? सो इफ यू बी regular so you'll understand. Okay मैम मुझे ना मैम मुझे कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है मैम, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। kindly switch to your Wi-Fi if you have a Wi-Fi over there, if there is any facility for that. ठीक है? Okay? यस मैम। Okay, lymphatic system की बात। मैम आप लेक्चर देती हो ना मैम, बीच में मुझे कट जाता है, पता नहीं होता है कि आपने क्या पढ़ाया है। आप प्लीज ये इशू टेक्निकल टीम्स के साथ डिस्कस कर लीजिए, मे बी दे कैन गिव यू अ बेटर ऑप्शन। ओके या सो बेसिकली तो मेरा, हाँ जी बोलिए प्रीतम। मैम पीडीएफ शो नहीं कर रहा है मैम, वो बहुत ज्यादा स्लाइड ऐसा कुछ दिख रहा है। मैम आपका होम पेज के लिए शो कर रहा है। 1 सेकंड। अब शेयर हुआ? Yes ma'am, screen storage started. Yes ma'am. Yes ma'am. अब ठीक दिख रहा है? Yes ma'am. ठीक है ओके। Yes ma'am. lymphatic system की बात करते हैं। that is the what is a lymphatic system, what is lymph? Basically lymph is a white color fluid which is parallel to your blood system and that do not contain RBCs. इनके पास RBCs नहीं होती और हीमोग्लोबिन नहीं होता, they are pigmentless. Okay, so lymphatics का क्या काम होता है? They are act as a defensive mechanism in your body. ठीक है, lymphatic systems में क्या होता है? lymph nodes आते हैं, tonsils आते हैं, subclavian nerve के आसपास thymus, just above the heart there is a thymus. ठीक है, then there is spleen, then there is inguinal lymph nodes और ये lymphatic vessels है। दिख रही है आपको? Can you appreciate? Now किसी से पूछा था कि tonsils का क्या काम होता है? बच्चे tonsils का क्या काम होता है? If there is any infection, ठीक है, it acts as your investigatory that there is your lymph node has been swollen. Always remember, कभी भी तुम बच्चे हो गए तो जब भी तुम डॉक्टर के पास विजिट कराओगे, they always palpate your this section, just below your neck section, they palpate this your lymph nodes. Do you remember? Occipital lymph nodes, some maxillary lymph node. There are different type of lymph nodes. Palatine, then there is tonsils. जब भी कोई भी ओरल इन्फेक्शन, हाँ जी बच्चे। मैम मायोजेनिक हार्ट हम में होता है, जो न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट व्हिच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। वो एनिमल्स में होता है। ये यस मैम, वो किन में होता है? बेसिकली वो आपके न्यूरोजेनिक जो हार्ट होते हैं वो आपके नोडल, बेसिकली जो आपके न्यूरल सिस्टम है उसको भी वो क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। जैसे मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ, यस मैम, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ न्यूरोजेनिक। मैम एक क्वेश्चन मैंने देखा मैम। बेटा एक सेकेंड, आप ना अपने डाउट ना क्लास के बाद मुझसे पूछा करो, क्लास के बीच में अभी मुझसे मैं पूछूंगी तुमसे डाउट, आप तुम मुझे तब डाउट अपने बताना कि मैम मेरे ये डाउट्स, गेट इट?
नहीं मैम, मैंने ठीक है। बुक से एक क्वेश्चन देखा है कि न्यूरोजेनिक हार्ट इज प्रेजेंट इन, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस पूछे हैं बच्चे आपसे? उसमें है वो ऑर्थोपोड्स है। हाँ, अर्थोपोड्स में नहीं होता, आगे बोलो। वो ऑर्थोपोड्स में मतलब कॉकरोच, क्रस्टेशियंस। यस मैम। बेटा मैं आपको एक इसकी ना वीडियो दिखाऊंगी, वो आपसे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा डिविजन्स ऑफ हार्ट की। ठीक है, अब मुझे ये वाला टॉपिक क्लियर करने दो, फिर मैं आपको एक वो वीडियो दिखाती हूँ। ठीक है, मायोजेनिक न्यूरोजेनिक हार्ट जो तुम कह रहे हैं, मैं उसका भी तुमको एक अलग से, अगर तुम चाहेगा तो मैं तुमको एक लेक्चर दे देगा। ठीक है, दे दूंगी मतलब। ठीक है, अभी प्लीज मुझे टॉपिक खत्म करने दो। ठीक है, बिकॉज ओके न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट से इतने क्वेश्चंस आते नहीं है वैसे। ठीक है, मतलब रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं आते। जितने भी मैंने क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस कराए हैं वो बेसिकली लिम्फ से, ब्लड से होते हैं, ब्लड सेल्स से होते हैं, हार्ट में से ईसीजी से होते हैं। आप मेरे पिछले क्वेश्चंस देखोगे 5 साल के नीट में, तो मायोजेनिक न्यूरोजेनिक हार्ट पे इतने क्वेश्चंस आए नहीं है। ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट पीपल आई कैन शो यू। ठीक है, दैट इज और जो तुम कह रहे थे न्यूरोजेनिक हार्ट जो कि ब्रेन से कंट्रोल होता है, दैट इज एन ऑर्थोपोड्स। ठीक है, तो सिर्फ ऑर्थोपोड्स था ना ऑप्शन, तो उसमें क्या होता है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑर्थोपोड्स। सम एनालिट्स के पास भी होता है, एनालिट्स के पास भी होता है। ठीक है, नर्व गैंग्लियन होता है एक सिचुएशन। मैम जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में मायोजेनिक होता है। हाँ, जैसे जितने कि मैमल्स है, जो भी मैमल्स है उनमें मायोजेनिक होता है, दैट मींस मसल। मायोजेनिक व्हाट? दैट इज मसल। मायोजेनिक कंट्रोल बाय मसल्स, कार्डियक मसल्स। हाँ, एग्जैक्टली, कार्डियक मसल जो हमारा है, दैट इज अ मायोजेनिक हार्ट। तो जैसे कि जितने भी मैमल्स है, रैबिट हो गया, रैट हो गया, दैट हैव अ मायोजेनिक हार्ट। एंड न्यूरोजेनिक हार्ट बेसिकली ऑर्थोपोड्स में होते हैं जो कि गैंग्लियन से कंट्रोल होते हैं। Okay, some annelids also have this neurogenic heart also. ठीक है, ओके। यस मैम। और कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउट का मैं भी सेशन रखूंगी। ठीक है, अभी मैं पहले ये खत्म कर दूं। ओके, सो बेसिकली टॉन्सिल्स में जैसे पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो गए। कौन से टॉन्सिल्स? पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो गए। लिम्फ नोड्स में जैसे थाइमस है, स्प्लीन है, इंगुइनल लिम्फ नोड्स है। ठीक है, सबक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या कैरी करती है? डिफेंसिव सेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स कैरी करती है। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन का इन्वेजन होगा, तो these lymph nodes get swelled. Okay, now there is a disorder also which is linked up to this, that is lymphoma. ठीक है, lymphoma में भी there is 2 type of lymphoma, that is Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. Okay, there is a small homework for you people. हमेशा मैं तुमको डिजीजेस के बारे में बताता, दीपक when will be your next class tomorrow? So you'll tell me what is the difference between lymphoma and Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. Okay, Deepak, will you do it? Yes, ma'am. पक्का? पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, समझ आया जो मैं पूछ रही हूँ? ठीक है, हॉस्किंस लिम्फोमा हो गया। लिम्फोमास में बेसिकली आपकी जो इसमें कैंसर्स के पेशेंट्स में भी लिम्फ नोड्स बढ़े हुए होते हैं। ठीक है, समझ आया लिम्फ नोड्स के बारे में? वैसे हॉस्किंस तुम्हारे उसमें दी नहीं रखी है,
एनसीईआरटी में, बट स्टिल तुमको क्या बोलते हैं उसे, अपडेट रहने के लिए एक बार मुझे बताओगे तुम, ठीक है? ठीक है। और बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ एन कैंसर, ठीक है? मैं तुमको राइटिंग अच्छे से एक और मतलब लिख के बता देती हूँ कि दैट इज HOD, हॉकिंस लिम्फोमा, ठीक है? और इसमें नॉन हॉकिंस lymphoma. Okay, it is a basically type of a cancer of the immune system. ठीक है, इनमें immunoglobulins कम हो जाते हैं. Okay, get it? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक डाउट किसी को भी? ठीक है, I'll be wrapping. मैंने तुम लोगों के साथ तो डिसऑर्डर्स वो कर ही लिए थे डिस्कस, राइट? यस मैम। मैम लिम्फ ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लिम्फ नोड्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? थोड़ा बाकी एक डिसऑर्डर जो तो मैंने तुम लोग के साथ डिस्कस नहीं किया, दैट इज हाइपरटेंशन। बहुत कॉमन है इंडियंस में हाइपरटेंशन। क्या होता है हाइपरटेंशन? हाई ब्लड प्रेशर के कारण। एग्जैक्टली, हाई ब्लड प्रेशर मतलब ऑलमोस्ट 150 टू 90 90 mm ठीक है, mm और inch, ठीक है? समझ आया ये चीज? अब जैसे डाउट्स पूछ लो तो मुझसे। नाउ आई विल बी गिविंग यू 6:40 हो रहे हैं, 7:10 तक क्लास है, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा। मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है? कोई भी चैप्टर में से डाउट बनता है तो बताओ। और मैं सोच रही थी कि तुमको आगे जो चैप्टर है जैसे इसी में से पढ़ाऊं या एनिमल किंगडम से स्टार्ट करूं, थोड़ा स्ट्रक्चर एनिमल टिश्यू, या पहले मैम इसी में से पढ़ा दो पहले। मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दो, ये कंप्लीट हो जाएगी ना। ठीक है, ओके। मैम सेल पढ़ा दिया? हाँ मैंने सेल पढ़ा दिया ना, हाँ मैंने सेल पढ़ा दिया। यस निक्की, मैंने सेल पढ़ा दिया था, यू वर एब्सेंट। तो मेरा लेक्चर देखना ना निक्की, कोई भी डाउट हो तो मैं फिर बता दूंगी। ओके निक्की? ओके, यस गाइस बताओ, डाउट्स पूछो, डाउट्स। पहले ये 4-5 क्वेश्चंस के आंसर, पहले ये 4-5 क्वेश्चंस के आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Which of the following is the largest lymphatic vessel in the human body? Thoracic duct, cysternituli, then lacteal duct, then right lymphatic duct. Yes. thoracic duct। किसने बोला ये? निकिता। निकी गोस +4। बाकी किसी को नहीं पता था ये आंसर? दीपक, हर्षिता, प्रीतम, रिंकी, शानू,
मैम थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए वाला। बेटा जो लॉन्गेस्ट डक्ट है दैट इज अ thoracic duct, लॉन्गेस्ट डक्ट है ये, दैट गोज योर लोअर लिम्फ आल्सो, लोअर बॉडी में भी जाती है, उसकी ब्रांचेस है, तो दैट इज द लार्जेस्ट lymphatic वेसल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, which one of the following statement is correct regarding blood pressure? जल्दी जल्दी मैम आंसर डी दो बच्चा ऑप्शन, पार्टी। मैम डी ऑप्शन। सी। यस इसका आंसर है सी। डी फिर अब सी। that is 190 to 110 may harm vital organs like brain and kidney, obviously अगर प्रेशर बढ़ जाएगा ब्रेन में, ठीक है, then there will be increase in pressure that will rupture your fluid as well. So first ये option is the right option, 1 A B C D। किसी ने C बोला था, किसने बोला था C? निकिता। Okay, Harshita, you'll tell me this one 2011 AIPM की question, that is bundle of hairs is a part of which one of the following organs in human? ये मैम, ये मैम, ए ऑप्शन। Yes. Now, AIPMT 2010, if due to some injury, the cord tendon of the tricuspid wall how this thing is had partially come to non-functional, huh? सी मैम, Exactly. The blood will flow back to the left artery. Why not D? like, what is this method if you are Why not D? मैम क्योंकि सेलुलर वॉल्व तो भी ठीक है। Exactly. D will be your option, no? The flow of blood into the pulmonary artery will be reduced. Obviously. Okay. Now tell me your doubts. फटाफट। अगर डाउट्स नहीं है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, या तो तुम लोग पढ़ नहीं रहा है। मैम डबल सर्कुलेशन में मैम एक बार फिर से समझा देंगे? बेटा डबल सर्कुलेशन, रुक जा, मेरे पास वीडियो है, 1 सेकंड। So we have done climate, हाँ climate हो गया सभी का? Any so अभी आप 2 hours उसको दे सकते। Just a second. Can you able to do you guys able to see the screen? Yes ma'am. Yes ma'am. See, can you appreciate these arrows? कहाँ से जा रहे हैं ये? Basically, this is your double circulation. Your pulmonary artery, अगर मैं बात करती हूँ, see, left pulmonary vein से through
ओके, आगे से बता रहा है। यस, बेसिकली ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है? राइट साइड से बॉडी के अंदर आ रहा है, दैट इज राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में, देन इट गोज बैक टू द पल्मोनरी आर्टरी for the purification, for the oxygenation. After through pulmonary vein, again the blood will flow where? Through your heart, and then through the aorta it will goes to your systemic arteries. Are you get it? Yes ma'am. समझ आ रहा है? Yes ma'am. ओके, और कोई डाउट पूछो, किसके डाउट है? दीपक डाउट पूछो बच्चे। हाँ जी दीपक। यस मैम। डाउट पूछो बच्चे। मैम अभी कोई डाउट नहीं है। आपने कहा था मेरे से कि मंडे मैम डाउट्स होंगे तो मैं मंडे पूछूंगा। मैम चैप्टर मैंने रख कर दिया है, ठीक है, अब तुम बताओ। मैम क्वेश्चन अभी सोल्व करने रहते हैं, मैंने चैप्टर रीड कर लिया, अभी तक कोई डाउट नहीं आया। क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो पूछ लूं। अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ मैं दीपक। हाँ यस मैम, यस मैम। क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ क्वेश्चन दे दीजिए। बच्चा तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस थे ना, वो इस पीपीटी में है, ठीक है। नीट के AIPMT के 10 साल तक के पेपर्स में से तो कोई आज तक मुझे नहीं लगा, मगर हाँ लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस मैंने इस पीपीटी में डाला है। पीपीटी गेट अपलोडेड टू योर दिस पैनल सून, ठीक है। तो यू विल बी ऑटोमेटिकली हैविंग योर 4 चैप्टर क्वेश्चंस विद यू, ठीक है। सैटरडे पेपर भी है, okay, and you all are ready for the paper, right? And okay, so कोई डाउट नहीं है शानू आपके? हर्षिता मैम कॉन्गुलेशन ऑफ ब्लड एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बेटा, जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है that is come under thrombocyte, ठीक है। coagulation of blood में thrombocyte that means platelet, there are 12 factors बेटा, 12 factors होते हैं, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन B12 दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर coagulation, ठीक है। प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन CA लगा के थ्रोम्बो प्लास्टिन बनाया मैंने, थ्रोम्बोप्लास्टिन, देन this thromboplastin प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। एंड दिस fibrinogen is converted into fibrin, या फिर कोई समझ आया शानू? यस मैम। आफ्टर यूरोप मैम ये फिब्रिन पॉलीमर,
हाँ, ये जो फिब्रिल होते हैं ये लाइंस होते हैं बच्चा। These are the thin polymers जो कि क्या बनाता है? इसी के बैच में मैंने फ्रेजल बॉन्ड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए। PNS सेल्स बताया था मैंने, मोनोसाइट्स बताए थे मैंने, केमोस्टैटिक सेल्स होते हैं। There are different type of cells which forms a hemostatic plug. Hemostatic plug which further displays into scar tissue. State क्या होता है? What is a state? Clear? यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. और कोई Yes, डाउट? ma'am. और कोई डाउट? No, ma'am. रिंकी आप पूछो बच्चा डाउट। हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट। हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट मैम न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। वही जो मैंने नोडल सिस्टम जो था, समझ नहीं आया तुझे? मैम न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में बच्चा यही तो आता है दीपक, वेगस नर्व, नोडल सिस्टम। आपको क्या समझना है उसमें दीपक? मैम जो एड्रेनल ग्लैंड वगैरह है ना, मतलब हार्ट बीट बढ़ती है घटती है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोसिस्टम। अच्छा पैरासिम्पैथेटिक बोल रहे हो तुम कि जब एड्रेनलिन बढ़ जाता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। जो मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था तुमको कार्डियक आउटपुट वाला, वो पूछना चाह रहे हो? यस मैम। टैकीकार्डिया ब्रैकीकार्डिया पूछना चाह रहे हो? हाँ जी हाँ जी बताओ टैकीकार्डिया क्या होता है? बताओ बताओ। सी बच्चे, जो लॉस ऑफ ब्लड होता है दैट इज इस्चीमिया। क्या बोलते हैं उसे? इस्चीमिया। अगर लॉस ऑफ ब्लड होगा तो लॉस ऑफ O2 लेवल होगा। अगर लॉस ऑफ O2 होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, दैट मींस ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, दैट विल गिव्स यू टैकीकार्डिया। क्लियर? समझ आया? यस मैम। यस मैम। ब्रेडिकार्डिया तुम मुझे बताओगे। अगर लॉस ऑफ ब्लड होगा, ठीक है, जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है सो ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो देयर इज अ चांसेस ऑफ व्हाट? ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया किसमें देखने को मिलता है? अंजाइना पेक्टोरिस, ओके? यस मैम। तुमने मुझे बोला था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। इफ
अगर एड्रेलिन बॉडी में इंक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें जो हार्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और ये कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है ये। अच्छा दीपक, इस पे ना एक वो भी है, कार्डियक वास्कुलर डिसऑर्डर्स भी है, बट वो इसमें नीट में पूछते नहीं है, इसलिए मैंने वो डाले नहीं थे। उसमें आते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सो इफ यू वांट तो मैं कल तुमको इसका भी एक लेक्चर दे दूंगी बाद में, ठीक है दीपक? ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। हाँ, तो बट ये बेसिकली ये इतना वो नहीं है, रेलेवेंट नहीं है नीट के लिए, बट इतना याद रखना दैट इज एड्रेनलिन अगर बॉडी में ज्यादा रिलीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो हार्ट रेट हार्ट इंक्रीज बीट और हार्ट रेट इंक्रीज होगा। एग्जैक्ट, ओके। एंड पेशेंट में सी पैल्पिटेशंस भी दिखते हैं, क्लियर? और अब मुझे समझानी थी प्रीतम को हिस्टोलॉजी ऑफ बच्चे। हार्ट की 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। फर्दर डिविजन्स भी होते हैं, जैसे जो पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है और सीरस पेरिकार्डियम होती है, पेरिएंटल लेयर होती है, देन स्पेस प्रेजेंट होती है, देन विल बी अ मायोकार्डियल मसल लेयर, है ना, would lead to formation of ठीक है? coil. So that rate of weathering that is depends. known as एंडोकार्डियम। अब मैंने तुमको डिजीज बताई थी, कौन सी डिजीज थी पेरिकार्डियम से शानू? मैम पेरिकार्डाइटिस। कार्डाइटिस Are leading in ranching industry and in कार्डियोमेगाली भी बताया था। हम एंडोकार्डिस्ट भी बताया था। एग्जैक्टली, मैंने ये बताया था आप लोगों को। एक सेकंड, बेसिकली तो कार्डियोमेगाली है, दैट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, साइज एंड शेप इंक्रीज हो जाती है हार्ट की। एग्जैक्टली, वो किसमें आपको देखने को मिलता है? सिटी में भी और कभी कभी एक्सरे में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? पेरिकार्डाइटिस बेटा, जो लेयर्स होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है। देन एक और डिजीज मैंने बताई थी, दैट इज एंडोकार्डाइटिस। व्हाट इज एंडोकार्डाइटिस? Inflammation of endocardium. Endocardium inflammation. Exactly, due to Streptococcus. Staphylococcus और Streptococcus कॉलोनी बना लेते हैं। Exactly, कॉलोनीज बना लेते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज, ठीक है? ओके, और कोई डाउट है? हर्षिता, डाउट पूछो बच्चे। पेरिकार्डियम में जो फ्लूइड एक रहता है वाला मैम क्या? हाँ, वो इन्फ्लेम कर जाता है। बच्चे और कोई डाउट पूछ लो। Ma'am, structure of blood vessels, ma'am. Can you explain that, ma'am? ट्यूनिका आर्टरिया। Yes, ma'am.
Acha, but that is not relevant to the need. I can explain to you that is a 3-layered जो arteries और walls को after forensic में ऐसे differentiate करते हैं due to presence of valve. जो arteries होती है वो collapse कर जाती है क्योंकि due to absence of valve in it, but जो veins होती है that do not collapse क्योंकि उनके अंदर valves होती है, ठीक है। और उसमें ट्यूनिका आर्टरी या there are 3-4 layers, fibrous layers होती है, but Harshita, that will be not never asked in NEET yet. Okay, ma'am. Yeah, that is a 3-layer. ये आपको बता देता है डायग्राम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। That is tunica arteria. Then there is a fibrous layer. Then anteccia. There are different type of layers बच्चे। So 3 से 4 टाइप की layers होती है arteries की, because they are thick. क्यों किसलिए होती है? क्योंकि इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। Get it, Harshita? But that is never asked in NEET. Okay. Layers पूछ लेते हैं कि कितनी layers होती है। 4 layers होती है। Okay. Okay. मैम एक चीज रह गई। हार्ट साउंड। लबडम मैंने बता दी थी बेटा। मैम कार्डियक साइकिल में बताया तो आपने। वही तो अभी ये ऐसे बोल रही है मैम, मैंने बताया नहीं। हम थोड़ा कट गया होगा, फिर मेरा नेटवर्क इशू था। मैम बाइकस्पिड जब बंद होगी, जब फर्स्ट हार्ट साउंड आ जाएगी और सेमिनर वॉल बंद होएगा जब सेकंड। सेमिनर बंद होगी तो कौन सी सुनाई देगी? डब सुनाई देगी। और बताओ। ओके मैम। और बताओ। Ma'am, right auricles is highly muscular than when compared to left auricles. Why, ma'am? Left ventricle is larger than right. Okay, because that और वो सबसे ज्यादा infectious भी होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा या एंडोकार्डाइटिस सबसे ज्यादा वही होता है वेंट्रिकल के सेक्शन में। लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए बड़ा है बिकॉज जो ओरिजिन है। हाँ बताओ। प्रेशर ज्यादा लगता है ना उसमें। एग्जैक्टली, प्रेशर की वजह से, बिकॉज वेंट्रिकुलस पे जितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है उतना आर्टरियम्स में नहीं पड़ता है। ओके ओके मैम। और कोई डाउट? बताओ। बताओ बताओ। Auricles which is highly muscular, ma'am? Right or left auricle, ma'am? बेटा लेफ्ट ऑरिकल is highly muscular. Now you are talking about muscular बच्चे। हर्षिता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा right auricle will be मतलब right atrium will be more muscular. क्यों? Right atrium is more muscular because जो pulmonary artery होती है ना, that opens into it और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? And in the option they have mentioned they will receive more blood. Ma'am, in option that given they will receive all the blood. Right auricle will receive blood more. हाँ ऑब्वियसली उनका जो प्रेशर होता है, जो बेटा वही तो ना मैंने बताया ना तुमको कि जो राइट साइड में जो इनका प्रेशर होगा राइट उसका वो सबसे ज्यादा होता है, तो ब्लड फ्लो कलेक्शन
मगर जब ब्लड फ्लो कलेक्शन की बात आती है तो वो 70 ml जो होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ज्यादा ब्लड फ्लो होता है बच्चे। लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का। ओके या नाउ इफ आई टॉक, जब तुमने पूछा था दैट वॉल्स जो है दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके देन ट्यूनिका, इंटिमा, okay, then middle layer, middle layer को और क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया, and the last one is what? Tunica externa. Get it? Yes, ma'am. हर्षिता satisfied हो गई? मैंने तुझे बता दिया, मगर ये पूछते नहीं है मगर, ठीक है? But due to your insisting मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं, बच्चा पूछ रहा है मुझसे तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। ओके, एनी मोर डाउट? नो मैम। तुम तो नो बोलोगे ही दीपक, पढ़ के जो नहीं आता है। नहीं पढ़ रहे हो ना तुम? पढ़ रहे हैं मैम। तो मतलब मेरा पढ़ाया हुआ सारा समझ आ रहा है तुमको? सबको ऐसा हो रहा है दीपक जैसा, या सिर्फ दीपक को ही ऐसा हो रहा है? हाँ जी प्रीतम? मैम सबको हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबको ही ऐसा हो रहा है। ठीक है प्रीतम, डाउट बच्चे? निक्की आल्सो सेड मैम सबको ऐसा है। ओके नो मैम, समझ आ रहा है, स्टडी कम हो रहा है, थोड़ा सेल्फ स्टडी कम हो रहा है इसलिए। नो मैम समझ आ रहा है मगर थोड़ा सेल्फ स्टडी कम हो रहा है। ठीक है ओके Okay, so next topic I'll be starting for you people is excretory. नहीं, excretory. न्यूरल पढ़ा दो सीधा, न्यूरल सिस्टम। बेटा excretory एक क्लास का है, लोकोमोशन एक क्लास का है, फिर न्यूरल में 2 क्लासेस लिए मैंने। ओके मैम। तो एक्सक्रीटरी एक दिन में खत्म कर दो, जैसे तुमने सेल खत्म करा है, ठीक है? हाँ एक्सक्रीटरी कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके ओके, कोई डाउट? ओके मैम। हर्षिता? नो मैम। हर्षिता सेटिस्फाइड हो गई? मैंने सब बता दिया तुमको? नो मैम? अरे अच्छा ओके, तो मैं कह रही थी कि एक्सक्रीटरी चालू करते हैं, कल ही खत्म कर देते हैं, छोटा टॉपिक है। उसमें बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीसीटी में क्या होता है एब्जॉर्ब, और लूप ऑफ हेनली में क्या है वो, और फिर एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर, रीनल फेलियर, ठीक है? ये सब मैं डिस्कस करती हूँ तुम सबसे कल, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। मैम एक और चीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने कहाँ पढ़ा है बच्चे? मैम मैंने 12th में पढ़ा था, नोट्स में एक सर ने एक्स्ट्रा लिखवाया था, कहा था नीड्स में पूछा जाता है। बेटा ब्लू बेबी सिंड्रोम्स में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना वो पूरी की तरह डेवलप नहीं हुई होती है, ठीक है? तो उसकी वजह से ना तो ब्लड होता है ना वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है? ओके ओके मैम। बेसिकली उसको मिथाइलोग्लोबिनेरिया भी बोलते हैं, या बोल सकते हो उसको तुम इन्फेंट्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है?
एंड इतना ही तुम्हारे लिए जानने के लिए सिर्फ बहुत है, ठीक है? ओके ओके, मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके, चले फिर क्लास खत्म करें? यस मैम। यस मैम। पक्का सर? पक्का सर? यस मैम। और शानू उसमें हीमोग्लोबिन भी कम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम में, ठीक है? जिसकी वजह से जो बॉडी मैम वो ब्लू एक पड़ जाती और चीज उसमें सर ने बताया था, वो जो वॉल होती है हर्ट की क्लोज होना, है, वो बंद नहीं क्लोज नहीं हो करती है। पाती। हाँ बंद, हाँ ठीक है। रेयर ओके, केसेस होते हैं ना मम्मी। सेंस के बहुत 0.5 to 0.10%, एक मतलब करोड़ों में एक केस होता है इसमें, ठीक है? यस मैम एक और जो बोलते हैं ना हार्ट में होल होता है, उस टाइप का वो उसमें बीटा क्या होता है? कंजेनाइटल होती है, वो बेसिकली कंजेनाइटल होती है, उसमें जो वॉल्स होती है वो बन नहीं पाती मैम है। ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर के बीच में जो होता है, मतलब एग्जैक्टली, आर्टरी डिलीवरी वेंट्रिकुलर से पहले सेप्टम मतलब वो नहीं बन पाता। वो बंद नहीं हो पाता, मतलब आफ्टर बर्थ। यस एग्जैक्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। Bye. Thank you. बाय बाय, Thank you, ma'am. थैंक यू, बाय बाय। बाय।